Good afternoon, students. This is my second video of this seventh chapter of Indian Economic Development of Class 12 CBSE Economics. And name of this chapter is Employment, Growth, Informalization and Other Issues. First of all, we'll see that what I'm going to make you understand in this video. In this video, I'm going to make you understand the remaining topics of this chapter, which are casualization of workforce, informalization of workforce, causes of unemployment in India, types of unemployment, and steps taken by Government of India to solve the problem of unemployment. So these are the topics which I'm going to make you understand in this video. So firstly, we'll try to understand the problem of casualization of workforce, which employment sector of our country is facing. And before I start making you understand this problem, I would like to recall you the types of workers which I explained in previous video. In previous video, I told you that there are mainly three types of workers: self-employed workers, regular salaried employees, and casual wage works. Now, the employment of self-employed workers is known as self-employment, and the employment of regular salaried employees is known as regular salaried employment, and the employment of casual wage laborers is known as casual wage works. So in this way we can say that there are three types of employment also: self-employment, regular salaried employment, and casual wage works. Now in previous video I told you this thing also, that these two are better kind of employments, means self-employment and regular salaried employment, means those who are engaged in regular salaried employment and self-employment, most of them are earning sufficient income to fulfill the basic needs of life. But this type of employment, that is casual wage works, this is the worst kind of employment, because most of them who are having this type of employment, casual wage works, they are not able to fulfill the basic needs of life because they are not earning sufficient incomes. That is why most of them are facing the problem of poverty. Now what is happening in our country, that in last 4 decades in our country, workers are moving in our country. There has been a continuous movement of workers in last 4 decades from self-employment and regular salaried employment to casual wage works. Means workers from self-employment and regular salaried employment are moving towards casual wage works, and this movement is known as casualization of workforce. So this is a serious problem in our country which employment sector is facing, that the workers are losing their jobs in better sector or in better employments like self-employment and regular salaried employment. That is why they have to take up the worst kind of job, that is casual wage works. Means better jobs, people are losing the better kind of jobs and they are getting the worst kind of job. So this is the main problem which our employment sector is facing, and this is known as casualization of workforce. And this is not the recent problem. This problem our country has been facing since last 4 decades. पिछले 40 साल से हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है कि जो बेटर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे वर्कर्स जो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट्स में इंगेज थे, वो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट्स को छोड़ के उनको लेना पड़ रहा है वर्स्ट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ कैजुअल वेज वर्क. मीन्स many workers who had been working in self-employment and regular salaried employment, because of some reasons they have to leave these jobs or they have been removed from these jobs, and that is why they have to accept the worst kind of job, that is casual wage works, and this problem is known as casualization of workforce. Now we'll try to understand the causes of this problem, why our country is facing this problem of casualization of workforce. First problem is lack of practical knowledge based education. लोग हमारी कंट्री में जो एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड एजुकेशन है. प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड एजुकेशन नहीं होने के कारण जब हायर एजुकेशन कंप्लीट करके the people of a country get regular salaried employment or they start their own business in self-employment, they are not successful, many of them. Why? Because they are not having the practical knowledge. प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण जब वो जॉब स्टार्ट करते हैं आइदर इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स और फेस दिस प्रॉब्लम्स प्रॉपरली. दैट इज़ वाई रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वाली जॉब, जो भी एम्प्लॉयर्स ने इनको इस जॉब पे रखा है वो एम्प्लॉयर्स इनको इस जॉब से रिमूव कर देते हैं. एंड
लाइवलीहुड अर्न करने के लिए उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, दे आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट कैजुअल वेज वर्क्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। और बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स वो हायर एजुकेशन अचीव करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या ओन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज अगेन वो बिजनेस को ठीक से रन नहीं कर पाते, लॉस होने लगता है और इसी तरह उनको अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ता है। और उसके बाद अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए they have to accept the casual wage works. So this is the first reason why the people are losing their jobs in self-employment and regular salaried employment because of lack of practical knowledge-based education. Second, lack of training facilities according to changing technique. Look, in modern era in which we are living at present, the production techniques are working techniques are changing day by day. The working techniques day by day change hoti hai. That is why the workers required to be trained according to the new techniques, but because of lack of training facilities it is not possible. That is why many workers become inefficient uh, to use the new techniques because of lack of training facilities, and that is why many of them are removed by their employers, or many of them are not able to run their business properly because they don't know how to use the new techniques because training facilities are not available, and that is why to earn their livelihood they have to accept the casual wage works, and this is one of the factors responsible for the casualization of workforce. Next, लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। कुछ ऐसे भी वर्कर्स हैं जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की तरह वर्क स्टार्ट करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनका हेल्थ स्टेटस डाउन हो जाता है। दैट इज़ वाई उनको अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को शट डाउन करना पड़ता है। ठीक से प्रॉपरली रन नहीं कर पाने के कारण लॉस होने लगता है, उनको शट डाउन करना पड़ता है। या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है तो उनके एम्प्लॉयर उनको इस एम्प्लॉयमेंट से रिमूव कर देते हैं क्योंकि उनका हेल्थ स्टेटस प्रॉपर नहीं होता है, और अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए दे हैव टू एक्सेप्ट कैजुअल वेज वर्क। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हमारी कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड बाय वेरियस एम्प्लॉयर्स मोर एंड मोर इन नंबर। ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं, एंड इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मोर कैपिटल लेस लेबरर्स आर रिक्वायर्ड और लेस वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। दैट इज़ वाई मेनी वर्कर्स आर लूजिंग देयर जॉब्स इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, and to earn their livelihood they have to move towards casual wage works. This is another factor responsible for casualization of workforce. And next is relaxation in labor laws. labor laws में बहुत सारे relaxations हैं, बहुत सारे loopholes हैं। इन loopholes का फ़ायदा उठा के जो employers होते हैं अपने बहुत सारे employees को वो रिमूव कर देते हैं जॉब से, और न्यू एम्प्लॉयज़ को वो जॉब दे देते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी बहुत बढ़ जाता है, तो इस तरह से उनको फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा हो जाता है प्रोडक्शन यूनिट्स पे या एम्प्लॉयर्स पे, तो वो अपने सीनियर एम्प्लॉयज़ को रिमूव कर देते हैं और उनकी जगह पे न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लेते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ को जॉब दे देते हैं, तो कम सैलरी पे सेम काम होने लगता है। और लेबर लॉज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में जॉब परमानेंट होती है, फिर भी ये कैसे निकाल पाते हैं इन जॉब से एम्प्लॉयर्स इन एम्प्लॉयज़ को? बिकॉज देयर आर मेनी लूप होल्स इन लेबर लॉज, और लेबर लॉज के इन लूप होल्स को यूज़ करके स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कंपनसेशन के फॉर्म में उनको दे के और उनको जॉब से रिमूव कर देते हैं, और इस तरह से इनको अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कैजुअल वेज वर्क्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो दिस इज़ अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। Now there is another problem in employment sector, that is informalization of workforce. Employment sector में एक और problem है जिसका नाम है informalization of workforce. Look, जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसको दो सेक्टर्स में जॉब सिक्योरिटी के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो अभी हमारे कंट्री में रिसेंटली ये हो रहा है कि there has been a continuous movement of workers from formal sector to informal sector. फॉर्मल सेक्टर से वर्कर्स मूव करके इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं। तो अब ये जा रहे हैं तो ये विलिंगली तो जा नहीं रहे, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम बेटर सेक्टर टू पुअर सेक्टर। अच्छे सेक्टर से ख़राब सेक्टर की तरफ वो जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मजबूर है इधर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में उनकी जॉब चली जाती है, फॉर्मल सेक्टर में दे आर लूजिंग देयर जॉब्स, एंड दैट इज़ वाई दे आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द जॉब्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में अपनी जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए वो कंपेल्ड हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जा रहा है
इस प्रोसेस को बोला जाता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स? बिकॉज वर्कर्स आर मूविंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर. नाउ यू मे आस्क अ क्वेश्चन दैट व्हाई इट इज टर्म एज अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटर सेक्टर से पुअर सेक्टर की तरफ वर्कर्स का मूवमेंट हो रहा है. मतलब ऐसे सेक्टर में जिसमें जॉब सिक्योरिटी है, इनकम लेवल ज़्यादा है, वर्कर्स आर मूविंग टू दैट सेक्टर वेयर देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और इनकम लेवल इज ऑल्सो लो. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम. मतलब बेटर जॉब लोगों की छूट रही है एंड दे हैव टू एक्सेप्ट द पुअर काइंड ऑफ जॉब्स. सो दिस इज़ द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर. अब मैं ये आपको बताऊंगा कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है. फॉर्मल सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड दोज प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स विच हैव 10 or more than 10 hired workers. मतलब all public sector units are included in formal sector and only those private sector units in which 10 or more than 10 workers have been hired or have been employed. सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उसमें चाहे एक वर्कर हो, चाहे 2 वर्कर्स, 3 वर्कर्स, 100 वर्कर्स, 200 वर्कर्स, बट ओनली दोज प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स इन विच 10 और मोर देन 10 वर्कर्स आर वर्किंग. ये इन सबको इंक्लूड किया जाता है फॉर्मल सेक्टर में. हमारी कंट्री में टोटल वर्कफोर्स का 7% केवल फॉर्मल सेक्टर में एंगेज्ड है. मतलब आउट ऑफ टोटल वर्कर्स ओनली 7% वर्कर्स आर वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर. इन फॉर्मल सेक्टर इट इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स विच हैव लेस देन 10 हायर्ड वर्कर्स. ऐसी सारी प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट्स जिसमें 10 से कम वर्कर्स हैं उनको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर. पब्लिक सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं आता है. ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फॉर्मल सेक्टर में एंड दोज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, दोज प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स इन विच 10 or more than 10 workers are working फॉर्मल सेक्टर. Only those private sector units in which less than 10 workers are working are included in informal sector. Now in informal sector 93% of total workers are working. हमारे कंट्री के 93% वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं. मतलब that sector in which there is job security, formal sector only 7% workers are working, and that sector which do not have any job security, that sector which does not have any job security, in that sector 93% workers are working. This is the reason why in our country most of the workers are facing the problem of low level of income, low living standard, and problem of no job security. ये प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री के जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही सफिशिएंट नहीं है. एम्प्लॉयमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमको सफिशिएंट इनकम मिल सके, जॉब सिक्योरिटी हो. सफिशिएंट इनकम और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला सेक्टर हमारे कंट्री में केवल 7% लोगों को जॉब दे रहा है. मतलब जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनमें से ओनली 7% पीपल आर अर्निंग सफिशिएंट इनकम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ life. Remaining 93% workers are working in informal sector, means they are working in that sector which is having many problems, no job security, no sufficient income to fulfill the basic needs of life. This is the problem of employment sector in our country. And not only this, but the dependence of workforce in इनफॉर्मल सेक्टर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. मतलब यदि वर्कर्स का मूवमेंट फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ हो रहा है, मतलब कंडीशन और ख़राब हो रही है. इफ़ वर्कर्स आर मूविंग फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर मीन्स वर्कर्स आर मूविंग फ्रॉम पुअर सेक्टर टू बेटर सेक्टर मीन्स मोर जॉब, देयर इज़ मोर जॉब क्रिएशन इन बेटर सेक्टर. बट हमारे कंट्री में बेटर सेक्टर में जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये इसका साइज़ और छोटा हो रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर का साइज़ डे बाई डे बढ़ता जा रहा है. दैट इज़ वाई द वर्कर्स ऑफ अ कंट्री आर फेसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. तो जो कॉजेज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के हैं, सेम कॉजेज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के भी होंगे. लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टेक्निक, lack of proper healthcare facilities, use of intensive capital intensive techniques, and relaxation in labor laws. Now we'll try to understand what are the main problems of informal sector. Informal sector, which is a poor sector. इस सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या क्या है? पहली प्रॉब्लम है देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी. इनफॉर्मल सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं उनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, टेम्परेरी जॉब्स हैं इसमें. नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. इस सेक्टर में सोर्स ऑफ इनकम कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है. नो प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. फॉर्मल सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं. फॉर्मल सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मीन्स पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो या न्यू पेंशन स्कीम हो.
पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट उसमें है, एंड देर आर स्कीम्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो इस तरह के पेंशन स्कीम्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। ये सारी स्कीम्स जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, बट इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर दोज स्कीम्स विच सिक्योर द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उनको पेंशन स्कीम्स दी जाती हैं, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स दी जाती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। इस तरह का प्रोविज़न इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है। यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्निक्स, इसमें आउटडेटेड टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, दैट इज़ वाई प्रोडक्शन इज़ लेस, इनकम इज़ लेस, and the workers are facing the problem of low level of income in this sector. अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन कैसी है इसका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट फुल्ली अवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर और द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है। नो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम होने का एक कारण ये भी है कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर नॉट मच स्किल्ड and that is why productivity is less. अब क्वेश्चन है कि what steps have been taken by government of India to improve the condition of informal sector. इनफॉर्मल सेक्टर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं? Appropriate change in labor laws to provide job security. Some steps have been taken by government of India to change labor laws to provide some job security to the workers. Provision of social security schemes. Uh, Government of India has launched many schemes to provide social security schemes to the workers of informal sector. Modernization, use of Government of India has been providing funds to the various production units of informal sector to use modern techniques of production, and provisions to maintain accounts. Now it has been made compulsory to the employers or the owners of production units of informal sector to maintain the accounts of um, their workers, and training facilities are being provided more and more in number by government of India to the workers of informal sector. Now we'll study about the unemployment. What is the meaning of unemployment? It is a problem in which an individual is not engaged in any economic activity, that is unemployment. इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में employment बताया था. It is that situation in which an individual is engaged in some economic activity as and earning income. इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ नॉट एंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी देन दिस विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, and this is a problem because if someone is not engaged in economic activity means he is not doing any kind of work, means he is not earning income to fulfill the basic needs of life. So he will be facing various kind of problem. He will not be able to fulfill the basic needs of life, and he may have to face the problem of poverty if there is no family support. यदि family support नहीं है तो उसको poverty की problem face करनी पड़ जाएगी. तो unemployment और poverty में direct relation होता है. तो unemployment is a problem because it creates a problem of poverty itself. इसके causes क्या है इंडिया में unemployment के? लैक ऑफ वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन. वोकेशनल एजुकेशन ऐसी होती है जो चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है फॉर द जॉब्स. तो हमारे कंट्री में जॉब प्रिपरेशन के लिए एजुकेशन नहीं दी जाती है, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए एजुकेशन दी जाती है. यदि टेक्निकल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी तो जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज से निकलेंगे दे विल बिकम मोर इफिशिएंट. इफ़िशियंसी उनकी ज़्यादा होगी तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, जॉब उनको आसानी से मिल जाएगी. बट दिस इज़ नॉट हैपनिंग. दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू गेट गुड क्वालिटी जॉब्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन. लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी means training facilities are not available in our country. Quality training facility, because of lack of training facility many people of our country are inefficient. That is why they are not getting good quality jobs. Poor infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ पुअर. इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है. बेटर इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर विल बी इन्वेस्टमेंट. मोर इज़ इन्वेस्टमेंट, मोर विल बी द यूज़ ऑफ, more will be the use of workers, and more workers will be employed, so employment will increase, and vice versa. If there is lack of investment, if there is poor infrastructure, there will be lack of investment. If there is lack of investment, there will be less demand of workers, less workers will be hired, less workers will be getting employment, and most of the workers will not be getting employment, and they will be facing the problem of unemployment. So this is another factor
लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिकॉज देर इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ वाई देर इज़ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ वाई देर इज़ लैक ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, दैट इज़ वाई देर इज़ लैक ऑफ employment opportunities, that is why only few individuals are getting employment, remaining are not getting employment, becoming unemployed and creating the problem of unemployment. Use of capital intensive techniques since 1991 in our country, after the implementation of LPG model, more and more producers are using capital intensive techniques and replacing labor. These capital intensive techniques are replacing labor intensive techniques. तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जब यूज़ होती हैं तो ज़्यादा लेबर्स होते हैं, उनकी जगह पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, नाउ लेस लेबरर्स आर रिक्वायर्ड, सो जो लेबरर्स एक्सेस में होते हैं उनको जॉब से रिमूव कर दिया जाता है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम्स इन आवर कंट्री. रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इज़ ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतनी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को या इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है या नियर टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन. एवरी ईयर मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. एवरी ईयर बहुत सारे लोग या बहुत बड़ी संख्या में लोग लेबर फोर्स का पार्ट बढ़ते हैं या वर्किंग एज ग्रुप में आ जाते हैं, और इतने लोगों को एक साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है. दिस इज़ अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐच्छिक बेरोजगारी, कोई जानबूझ के बेरोजगार रहना चाहता है या अनएम्प्लॉयड रहना चाहता है तो इसे बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. It is that unemployment in which an individual is unemployed because he is not willing to work. He is not willing to work. ये do नहीं है यहाँ पे, do कट कर दीजिएगा. दो वर्क इज़ अवेलेबल, मतलब यदि किसी के लिए वर्क अवेलेबल है, एम्प्लॉयर उसको जॉब पे रखना चाहता है, बट दैट पर्सन himself does not want to work, that is why he is unemployed. So this type of unemployment will be known as voluntary unemployment. मतलब कोई इंडिविजुअल इसलिए अनएम्प्लॉयड है क्योंकि वो जॉब नहीं करना चाहता है, दो जॉब इज़ अवेलेबल. इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी का ऑपोजिट, इट इज़ दैट अनएम्प्लॉयमेंट इन विच एन इंडिविजुअल इज़ अनएम्प्लॉयड बिकॉज वर्क इज़ नॉट अवेलेबल दो ही इज़ विलिंग टू वर्क. मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल है जो जॉब करना चाहता है फिर भी अनएम्प्लॉयड है क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं है. तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को इनवॉलंटरी बोला जाएगा. इट इज़ जनरली फाउंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की हिंदी होती है छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी. इसमें क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल आपको लगेगा कि वो एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली ही इज़ अनएम्प्लॉयड. कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूँ कि एक टेबल है और उसको उठा के लाइए यहाँ पे. मतलब मैं आपको एक काम देता हूँ कि गो एंड ब्रिंग दैट टेबल टू मी, और उस टेबल को लाने के लिए सपोज 2 इंडिविजुअल्स आर सफिशिएंट. 2 लोग टेबल को ला सकते हैं, लेकिन उसको ला रहे हैं 5 लोग मिलके. ओके, मीन्स 5 people are doing the work of 2 individuals. Means the work which could have been done by 2 individuals only is being done by 5 people, 5 individuals. तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, 5 लोग मिलके 2 लोगों का काम कर रहे हैं, मतलब 3 लोग इसमें हैं, एक्सेस में हैं. ये 3 लोग केवल काम करते हुए लग रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड, क्योंकि 5 लोग मिल के 2 लोगों का काम कर रहे हैं. मतलब इसमें से एक्चुअली 5 में से 2 ही लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग ओनली लग रहा है कि काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग. तो ये 3 लोगों को बोला जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें आपको लगेगा कि 5 लोग काम कर रहे हैं बट एक्चुअली 5 लोग 3 लोगों का काम कर रहे हैं, तो 2 लोग एक्चुअली उसमें अनएम्प्लॉयड हैं, आर दे आर नॉट वर्किंग. तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, सपोज एक फार्मर है, उसके पास एक फील्ड है, ये खेत है, फार्मर उसमें अकेले काम कर रहा है और एवरी ईयर ही इज़ ग्रोइंग द वीट ऑफ सपोज 50,000 का वीट ग्रो कर रहा है, और उसके 2 बच्चे हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनको कोई कहीं और जॉब नहीं मिलती है, तो अब ये 2 लोग इसी खेत में काम करने लगेंगे, और ये 2 लोग इससे कितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना अकेला फार्मर कर रहा था 2 लोग भी मिलके उतना ही करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी इस फार्म की यही है कि वीट का प्रोडक्शन 50,000 के वीट का प्रोडक्शन इससे किया जा सकता है. तो पहले एक फार्मर 50,000 के वीट का प्रोडक्शन कर रहा था, अभी 2 फार्मर्स आर डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ सेम वैल्यू ऑफ वीट, दैट इज़ ऑफ 50,000 रुपीज़. मतलब 2 लोग मिलके 1 लोग का काम कर रहे हैं, मतलब इसमें एक ही एक्चुअली काम कर रहा है, एंड अनदर 1 इंडिविजुअल इज़
actually that one individual is unemployed, though he is looking like working, but actually he is not working. तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें ये एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल तो काम कर रहा है, दूसरा इंडिविजुअल जो है वो काम करता हुआ दिख रहा है लेकिन ये अनएम्प्लॉयड है। इसकी अनएम्प्लॉयमेंट जो क्या है, ये छिपी हुई है, इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें किसी भी काम में जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ दैट अनएम्प्लॉयमेंट इन विच द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इज़ मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं उससे ज़्यादा लोग यदि काम कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इट इज़ जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। कोई फार्मर है, एक खेत में काम कर ले रहा है अकेले इफ़िशेंटली। अभी क्या हुआ, उसके 2 बच्चे थे और वो 2 बच्चे अनएम्प्लॉयड रह गए, तो उन दोनों को भी खेत में लगा देगा। तो अभी वही खेत में उतनी ही इफ़िशेंटली 2 लोग काम कर रहे हैं। तो जिस इफ़िशेंसी से एक इंडिविजुअल काम कर रहा था उतनी ही प्रोडक्टिविटी 2 लोग मिलकर मेंटेन कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली 2 लोग काम करते हुए लग रहे हैं, बट 2 लोग एक का ही काम कर रहे हैं। मीन्स 2 लोगों की प्रोडक्टिविटी एक के बराबर ही है। तो एक एक्चुअली इसमें काम कर रहा है, अनदर वन इज़ ओनली लुकिंग लाइक वर्किंग बट ही इज़ नॉट वर्किंग। तो इसमें द नंबर ऑफ वर्कर्स engaged in this example in that farmer's field is more than actually required. 2 workers are working but only 1 worker is required, so 1 is in excess. यदि उसको वहाँ से हटा लिया जाए खेत से तो भी प्रोडक्टिविटी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब 2 लोग मिलकर एक का काम कर रहे हैं, इसका मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स ड्यू टू चेंज इन सीजन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। मेन सीजन में लोगों को काम मिल जाता है वर्कर्स के रूप में, लेबरर्स के रूप में किसानों के खेत में। जब ऑफ सीजन होता है, मतलब जब ऑफ सीजन आता है, मतलब जब एग्रीकल्चर फील्ड में कोई काम नहीं रहता है तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग के सीज़न में या सोइंग ऑफ सीड्स के या वीडिंग के टाइम पे इनको काम मिलता है, रिमेनिंग मंथ्स में काम नहीं मिलता है, तो इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक सीज़न में काम मिलता है, दूसरे सीज़न में काम नहीं मिलता है। ये जनरली ये पाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन इकॉनमी। जब इकॉनमी में स्ट्रक्चरल चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज। जब भी इकॉनमी में डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द न्यू टेक्निक्स, तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग सेंटर्स में कुछ पीरियड के लिए भेज दिया जाता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए। तो जब ट्रेनिंग सेंटर्स में वो चले गए रहते हैं, ट्रेनिंग अक्वायर कर रहे होते हैं टू ऑपरेट द न्यू टेक्निक्स, उस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो फिर से आके वो काम करने लगते हैं, एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में when people go to training centers to acquire the efficiency to use the new techniques which have been used or which are being used in various production units because of structural change in economy. For that time period when this use new techniques in production in training centers, they become unemployed. So that type of unemployment is known as a structural unemployment. इट इज़ नॉट अ सीरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से वो आके एम्प्लॉयमेंट पे लग जाते हैं और वो फिर से एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। ऐसे ही होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ जॉब बाय एन इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल है, एक जॉब कर रहा है और उस जॉब से बेटर जॉब उसको मिल जाती है, तो एक जॉब से रिज़ाइन करके दूसरी जॉब को ज्वाइन करेगा। तो उस एक जॉब से रिज़ाइन करने से लेकर दूसरे जॉब को ज्वाइन करने के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड के लिए वो हो जाएगा अनएम्प्लॉयड। सपोज आज वो रिज़ाइन देता है एक जॉब से एक इंडिविजुअल और उसको बेटर जॉब लग जाती है और आफ्टर 1 वीक जाके नई जॉब ज्वाइन करता है, तो 1 वीक के लिए वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सीरियस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये तो दिखा रहा है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब किसी इंडिविजुअल को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, इसीलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो गया है जब वो शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब। सो दिस इज़ द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमको स्टडी करना है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये स्टेप ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है पॉवर्टी चैप्टर में, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, और उसमें बताया था 3 डायमेंशनल अप्रोच अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सेकेंड अप्रोच वॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अप्रोच,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अप्रोच में मैंने यही बताया था कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज हम ये मानते हैं कि पॉवर्टी का मेन कॉज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है। तो 3 डायमेंशनल अटैक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर पॉवर्टी, उसका जो सेकेंड पॉइंट था वही यहाँ पे हो जाएगा, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको पॉवर्टी वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करा हुआ है। वहाँ पे मैंने बताया था 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स में मैंने बताया था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके बारे में बताया था प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, देन दीन दयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे NULM, देन दीन दयाल अंत्योदया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM, देन प्राइम मिनिस्टर्स मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, ये सारी स्कीम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट generation programs. There are some schemes which have been launched in our country as wage employment generation programs, जो wage employment generate करती हैं, जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज़ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और इसके फीचर्स भी आपको एक्सप्लेन करे गए थे। तो वहाँ यदि इसको समझना है इस टॉपिक को, तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो नंबर 2 अपलोडेड बाय मी ओवर माय यूट्यूब चैनल अंडर चैप्टर पावर्टी चैप्टर का वीडियो नंबर 2 आप देखेंगे तो उसमें ये सारे स्टेप्स, ये सारे जो स्कीम्स हैं उनको एक्सप्लेन करा गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।